ये पहले भी घटी है। If you can believe, brother and sister. अगर भाई बहन आज आप विश्वास कर पाए, Amen. आमीन आमीन। Now I want to show you something. अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। The pillar of fire came behind them, आग का खंभा उनके पीछे आ गया, telling the Egyptians, मिस्रों को बताते हुए, if I spared them in your country, अगर मैंने तुम्हारे देश में spared them, मैंने उनको रख छोड़ा and I didn't kill them, और मैंने उन्हें नहीं मारा, I won't be allowing them to be killed by you again. अगर उनके देश में रहते हुए तब मैंने तुम्हारे देश में रहते हुए, तुम्हारे देश में रहते हुए मैंने उनको मारने नहीं दिया, तो मैं आज भी उन्हें तुम्हें मारने नहीं दूंगा। I will not. मैं नहीं मारने दूंगा। I'll stand between them and you. मैं उनके और तुम्हारे बीच में खड़ा हो जाऊंगा। Brother, if you are the redeemed, भाई अगर आप छुड़ाए में हैं, you don't have to worry. तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। From where it'll come, I don't know. From where it'll come, I don't know. मुझे नहीं पता ये कहां से आएगा, But somewhere that angel will arrive. पर कहीं से वो दूत आ ही जाएंगे, And that angel will stand between you and your enemy. और वो दूत जो है आपके और आपके दुश्मन के बीच में खड़े And होंगे, you'll feel such a presence और आप ऐसी मौजूदगी का महसूस करेंगे like you never felt before. जिसको आपने कभी भी नहीं एक्सपीरियंस And किया the है। next minute, और अगले ही मिनट your problems are over. आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। Why? क्यों? You are a covenant people. आप वाचा में के लोग हो, You are a token people. आप टोकन के लोग हो, You are a people who have the word. आप ऐसे लोग हो जिनके पास वचन है, You have the Holy Ghost. आपके पास पवित्र आत्मा है। Now sit down, please. बैठिए कृपया। आमेन आमेन My. हालेलुया Amen. आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। We're talking about the direction. हम बात कर रहे हैं दिशा के बारे में। The Bible never said pillar of fire. बाइबल ने कभी भी नहीं कहा आग का खंभा, It says pillar of cloud. वो ये कहता है बादल का खंभा। The cloud which led them. जो बादल जो उनकी अगुवाई कर रहा था। Every day they wake up, they see the cloud. Every day they get up, they see the cloud. आमेन। हर रोज जब वो उठते हैं बादल को देखते हैं, हर रोज जब वो उठते हैं बादल को देखते हैं। But this particular day, पर इस खास दिन the cloud went behind ये बादल पीछे चला गया and stood between them and their enemies. और उनके दुश्मनों के बीच में आके खड़ा हो गया। I want to tell you, brother, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, you have a help. आपके पास एक मदद है, You have a ministry. आपके पास एक सेवकाई है, You have an angel. आपके पास एक दूत है। None dare touch that angel. कोई खबरदार उस दूत को ना छुए, Nobody can touch it. कोई भी नहीं छू सकता। The Bible says, touch not my anointed बाइबल कहती है मेरे अभिषिक्त को ना छूना and do my prophets no harm. और मेरे नबियों की हानि मत करना। How Brother Branham says, by faith he placed the blood of Jesus between him and that disease. कैसे भाई हम कहते हैं बड़े विश्वास के साथ हम उनके और उस बीमारी के बीच में प्रभु यीशु का लहू लगाते हैं। And that's exactly true. और ये वास्तविकता में सत्य है। God stands personally between you and your enemy. व्यक्तिगत तौर पे खुदावंद आप और आपके दुश्मन के बीच में खड़े होते हैं। And nothing is going to happen, brother. और कुछ हो नहीं सकता मेरे भाई। Are you with me till now? क्या आप मेरे साथ हैं मेरे आप? Now let me show you a little further. अब आइए मैं थोड़ा आपको आगे दिखाऊंगा। I'm going to read now from verse 21. मैं 21वें आयत से पढ़ूंगा। And Moses stretched out his hand over the sea. See, the first thing happened. अब देखिए पहली चीज जो हुई, The pillar of cloud came behind. जो बादल का खंबा था वो पीछे आ गया। Now the Egyptians can't go on to kill them. अब मिस्री आगे बढ़ नहीं सकते कि उन्हें मार पाए, But still the problem is there. पर अभी भी समस्या है। There's no way ahead. आगे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा। For that, उसके लिए now Moses did the next thing. मूसा ने अगली चीज करी। And Moses stretched out his hand over the sea. तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। And the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night and made the sea dry land and the waters were divided. और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। Listen, how was that way opened? सुनिए कैसे वो मार्ग खोला गया।
by a strong east wind. एक प्रचंड पूर्वी हवा के द्वारा। And this is the age when he's coming from the eastern side. और ये वो युग है जब वो पूरब की दिशा से आ रहे हैं। And that eastern coming और वो पूर्वी आमद will open that way. उस मार्ग को खोलेगी, The way called the rapture. वो मार्ग जो कि रैप्चर कहलाता है। Nobody could follow them on that way. कोई भी उनके साथ नहीं चल सकता उस मार्ग पे, Because when the Egyptians tried, they were drowned. क्योंकि जब मिस्री ने कोशिश करी तो वो डूब गए। The way which was redemption for them was death for the other. आमेन। वो मार्ग जो कि उन इजरायलियों के लिए छुटकारा था, वो दूसरे के लिए मृत्यु बन गया। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? Just briefly that way opened. बड़े थोड़े समय के लिए वो रास्ता खुला। That's what's going to happen in this age. यही चीज होगी इस युग में। For a brief time, the rapturing faith will open. थोड़े समय के लिए उड़ाने वाला विश्वास खोल दिया For जाएगा। a brief time, that season will open. थोड़े समय के लिए वो मौसम खुल जाएगा। When the true bride will come to that faith. जब वो सच्ची दुल्हन उस विश्वास पे आ जाएगी, A rapturing faith. एक उड़ाने वाला विश्वास। And when she receives that faith, और जैसे उस विश्वास को प्राप्त the करेगी, final quickening. अंतिम जागृति। Hallelujah. हालेलुया। How will it come? कैसे आएगी? A strong east wind. एक प्रचंड पूर्वायु। Amen. आमीन आमीन। Watch the third pull then. तीसरे खिंचाव को तब देखना। In types, तस्वीरों में Moses is operating that pull here. मूसा उस खिंचाव को यहाँ करके दिखा रहा है। In types. तस्वीरों में। And what happened? और क्या हुआ? A strong east wind came एक बड़ी प्रचंड पूर्वायु आई and it divided the sea. और उसने समुद्र को बांट दिया। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? यस। God really bless you. खुदावन आपको आसक्ता में बरकत That दे। eastern wind वो पूर्वी हवा which brings deliverance. जो छुटकारा लेके आती है, That seventh seal wind. वो सातवीं मोहर वाली हवा, That second coming wind. वो दूसरी आमद वाली हवा, The rapturing faith wind. वो उड़ाने वाले विश्वास वाली हवा, Which brings rapturing faith. जो उड़ाने वाला विश्वास लेके आती है। One of these days, इन्हीं किन्हीं दिनों में that wind will blow through this church. वो हवा इस चर्च में बहेगी। If it's not already blowing today, अगर ये अभी तक नहीं बह रही तो I want to say this. मैं कहना चाहता हूँ, It'll blow in a strong way. ये एक और प्रचंड रूप में बहेगी। It'll lift the faith of some ये कुछ के विश्वास को उठा देगी and bring it to a place. और एक ऐसे स्थान पे लेके आएगी To bring them to a final body quickening. कि वो अंतिम देह के बदलने को लेके आएंगे, जागृति को लेके आएंगे। But you see the direction is there. पर आपने देखा वो दिशा East wind. पूरब की हवा, East wind. पूर्वी हवा। There are scriptures in the Bible. वचन में आयते हैं, When you see a cloud in the west, जब तुम पश्चिम में बादल को देखो then it talks about the north winds. तो वो फिर बात होती है उत्तर की हवाओं के बारे में। Then the scriptures talks about the south winds. फिर वचन की आयतें बात करती हैं दक्षिण की हवाओं के बारे All में। this is written in the Bible. ये सब कुछ बाइबल में लिखा है। I just showed you a scripture मैंने केवल आपको एक वचन की आयत दिखाई to make you understand ताकि आपको ये समझाऊं that this is a direction. कि ये एक दिशा है And when the direction starts operating, और जब ये दिशा कार्यान्वित होने लगती है, you see, this is the eagle age, आप पाएंगे कि ये उकाब का युग है। but this is one time an eagle and lion will come together. पर ये एक ऐसा समय है, आमेन, जब उकाब और सिंह एक साथ आ जाएंगे। Revelation 10:1, प्रकाश वाक्य 10:1 lion. सिंह, 10:7, 10:7 eagle. उकाब, 10:1, 10:7 coming together. 10:1 10:7 एक साथ आ रहे हैं। Lion and eagle coming together. सिंह और उकाब एक साथ आ रहे हैं। Lion is the king of the beasts on the earth. जो सिंह है वो तमाम जानवरों का राजा होता है जो कि पृथ्वी पे होते हैं। And eagle is the king of the birds in the sky. और जो उकाब है वो राजा होता है उन तमाम पक्षियों का जो आकाश में उड़ते हैं। When eagle and lion comes together, जब उकाब और ये सिंह एक साथ आते हैं, it brings a rapture. ये एक रैप्चर लेके आते हैं। माय आमेन, It brings Amen. a rapture. ये एक रैप्चर लेके आते हैं। That's a rapture anointing. ये एक रैप्चर वाला अभिषेक है। In the days of the voice of the seventh angel, सातवें दूत के शब्द देने के दिनों में when eagle and lion comes together, जब उकाब और सिंह एक साथ आएंगे, when they come together, जब वो एक साथ it आएंगे, minister a rapturing faith, ये एक उड़ाने वाला विश्वास मुहैया करेंगे, a message to the bride. एक संदेश दुल्हन के लिए।